Very good morning, children. Today I am going to continue next video from chapter 4, that is heat. In the previous video, we talked about how the things are hot and cold, about the temperature and types of thermometer, but some topics were remain. Today I am going to continue the topic about thermometer. We talked about there are two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. Let us see what is laboratory thermometer. A laboratory thermometer is used for measuring the temperature in a science laboratory. यानी कि बच्चों, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है. देयर इज a glass bulb containing mercury which joins at the lower end of the glass tube, and the top of the end of glass tube is sealed. The whole length of the thermometer glass tube is graduated or calibrated in डिग्री सेल्सियस. यानी कि इसका जो पूरा लेंथ है उसको डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट किया हुआ है. यानी कहने का अर्थ है कि टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेल्सियस में. द ग्रेजुएशन में marked on the tube of a commonly used laboratory thermometer from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. So the common laboratory thermometer can measure the temperature from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. This is called the range of thermometer. और इस नाप को उस थर्मोमीटर का रेंज कहा जाता है कि इतने रेंज तक वो थर्मोमीटर नाप सकता है. The range of laboratory thermometer is generally minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. This means that a common laboratory thermometer can measure This means that the common laboratory thermometer can measure a lowest temperature of 10 degree Celsius and highest temperature of 110 degree Celsius. So students, you have understood that how much range do a laboratory thermometer contain. The next thing, precaution in using laboratory thermometer. Yani which kind of precautions we should take when we are using the laboratory thermometer. The laboratory thermometer should be held vertically while measuring the temperature. It should not be tilted. यानी कि जिस प्रकार मैंने बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम इधर उधर टिल्ट भी कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें वर्टिकली स्ट्रेट रखना होता है जब तक कि उसकी रीडिंग ना मिल जाए. द नेक्स्ट, द थर्मोमीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय अ सब्सटेंस. और उसके जो बल्ब है वो उसके चारों ओर वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर को नापना है. द थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स और बॉटम ऑफ द कंटेनर. और उसकी जो बल्ब है उसको ना तो कंटेनर का कोई भी किनारा उसे छूना नहीं चाहिए. यानी कहने का अर्थ है कि जब जो भी सब्सटेंस हम नाप रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर वो बल्ब होना चाहिए. रीड द थर्मोमीटर while its bulb is still in touch with the substance whose temperature is being to be measured. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो हम रीडिंग करते हैं तो उस समय जब तक वो सब्सटेंस के अंदर रहेगा तब तक ही हम उसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं. Read the thermometer by keeping the level of mercury along the line of sight. Do not hold the thermometer by a bulb. और कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब की सहायता से हमें पकड़ना नहीं चाहिए. Handle the thermometer with care and it can break if hit against a hard object. और थर्मोमीटर को हमें केयरफुली उठाना चाहिए या रखना चाहिए बिकॉज इट इज मेड ऑफ ग्लास और वो किसी भी हार्ड सब्सटेंस से ब्रेक हो सकता है. A laboratory thermometer cannot be used to measure the human body temperature. और इसका इस्तेमाल हम कभी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज देर इज अनदर थर्मोमीटर विच कैन स्केल आवर बॉडी टेम्परेचर. इट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसका जिक्र हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देर आर टू types of thermometer: laboratory thermometer and clinical thermometer.
This is because as soon as we take out the bulb of laboratory thermometer from our mouth, the level of mercury is in its tube will started falling quickly. This will give a wrong value of the body. अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो द लेवल ऑफ मर्करी इज इन इट्स ट्यूब विल स्टार्ट फॉलिंग क्विकली, वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो भी रीडिंग देगा वो बिल्कुल गलत होगा. इट इज क्लियर दैट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर वी शुड यूज द थर्मोमीटर in which the mercury level does not fall even when its bulb removed from the mouth. Before we describe the clinical thermometer, we should know the meaning of term kink. The kink is a narrow and sharp bend in the bore of clinical thermometer tube. Kink is also known as constructions. यानी कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दोनों में डिफरेंस बताया था कि उनके क्लिनिकल थर्मोमीटर में कंस्ट्रक्शंस होते हैं और लेबोरेटरी में नहीं होते हैं. So that is the normal temperature of a human body is 37 degree सेल्सियस. यानी किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हेन अ पर्सन गेट्स फीवर हिज बॉडी टेम्परेचर रेजेस. यानी कि जब उसे फीवर होता है तो उसकी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होने लगता है. एंड द थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. A clinical thermometer consists of a long glass tube having a thin uniform bore and there is a glass bulb at one end of the glass tube. The glass bulb contain mercury. उसके अंदर एक फ्लूइड भरी होती है रेड कलर की, आपने देखी होगी. That is mercury, and outside the glass bulb a small shining thread of mercury can be seen in the thermometer tube. The other end of the glass tube is sealed और उसके अनदर एंड को सील किया होता है. A temperature scale is marked on the glass tube of the clinical thermometer. The clinical thermometer has temperature scale marked 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. बच्चों ये आप याद रखोगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पर है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. Then next you can see here the construction of how clinical thermometer is done. ये है बल्ब और ये हमारे ग्लास की एक पतली सी नली और उसके अंदर आप देख रहे हो मरकरी का जो थ्रेड गया हुआ है. तो ये मरकरी जो है वो हमें रीडिंग देता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई है. ओके स्टूडेंट्स, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ मरकरी thermometer which has a special design to measure the temperature of human body. A clinical thermometer has two special features which can make it different from the laboratory thermometer. यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में दो अलग अलग फीचर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिसके कारण ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कुछ अलग होता है. A clinical thermometer has very short range of temperature. इसका जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो काफी शॉर्ट होता है. एंड दिस मीन्स दैट द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर ओनली फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. The short range of clinical thermometer is due to the fact that the temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius and above 42 degree Celsius. यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है. इसीलिए इसका जो रेंज है वो काफी छोटा है और ये रेंज जो है उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कुछ अलग बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक और कंस्ट्रक्शंस इन इट्स ग्लास ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी. आपने देखा होगा बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ऐसे करके और ये एक कंस्ट्रक्शन है जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं है. तो ये भी है, दिस इज द पॉइंट दैट डिफरेंस फ्रॉम laboratory thermometer. The kink is prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb. और ये क्या करता है
मरकरी के बैक फ्लो को वापस जो वो जैसे कि अगर वो नहीं बना रहेगा तो मरकरी है दोबारा से फ्लो होकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा और हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रीड नहीं कर पाएंगे. So, when the thermometer bulb is removed from the mouth of a patient, the king prevents the mercury level in the thermometer tube from falling its own. So, even when the thermometer bulb is removed from the mouth, the mercury thread will keep standing at the maximum level reached. Due to this, we can read the correct body temperature. तो बच्चों ये दो फीचर्स थे जिसके आधार पर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है. देन नेक्स्ट प्रिकॉशंस इन यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि किस प्रकार से कौन कौन से हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए. द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर आफ्टर यूज विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. और कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर जब भी हम यूज करते हैं उससे पहले या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर, वी हैव टू क्लीन इट इन एंटीसेप्टिक solution. The next point is, before using the clinical thermometer, we should ensure that the mercury level in its tube is below 35 degree Celsius. यानी कि उसका यूज करते समय हमें श्योर हो जाना चाहिए कि उसका जो मार्क है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो है. Read the clinical thermometer by keeping the level of mercury along द लाइन ऑफ साइट. इसकी रीडिंग जो हमें मरकरी के अकॉर्डिंग करनी होती है, यानी कि जहां तक मरकरी का थ्रेड पहुंचता है वहां तक वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है और उसी के लाइन को साइड को ही देखकर हमें उसे नापना चाहिए. देन पॉइंट नंबर 4, द क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नेवर बी हेल्ड बाय द बल्ब. और कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को बल्ब आगे से बल्ब को छूकर नहीं उठाना चाहिए while reading it, otherwise the bulb will break. Okay students, then next we move on some more important points. A clinical thermometer has usually two temperature, यानी clinical thermometer में दो temperature होते हैं. Scale marked on the glass tube on two sides of the mercury thread, यानी कि दो तरफ से उस पे मार्क किए गए होते हैं. एक तो होता है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड अनदर इज Fahrenheit scale of temperature. We have not shown the Fahrenheit scale of temperature in figure 4 to keep the diagram simple. The Fahrenheit scale of temperature marked on the clinical thermometer has the range of 94 Fahrenheit to 108 Fahrenheit. Yeah, Fahrenheit means degree Fahrenheit, and the normal temperature of a human body on Fahrenheit scale is 98.6 Fahrenheit. स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बच्चों आप याद रखोगे अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापते तो हमारे एक नॉर्मल मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड इफ वी मेजर इन Fahrenheit then it is 98.6 degree Fahrenheit. Okay students, the temperature was used in earlier days and India has now adopted the Celsius scale. यानी कि पहले जो था फ़ारेनहाइट में नापते थे और अब जो है डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. We should read the Celsius scale temperature marked on the clinical thermometer. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. By saying that the normal temperature of human body 37 degrees Celsius, we do not mean that each and every healthy person should have a body temperature of 37 degrees Celsius. What we call normal temperature of a body is 37 degrees Celsius is average body temperature of a large number of healthy persons. So, normal body temperature of every healthy person may not be exactly 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस एक एवरेज माना गया है कि लगभग बहुत सारे लोगों के बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है कि सारे लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर हो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा. It could be slightly higher or slightly lower. वो 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है.
So next, how does clinical thermometer work? तो let us see how the clinical thermometer work. किस प्रकार से clinical thermometer काम करता है. When we put the thermometer bulb in the mouth of a patient, then some of the body heat of a patient is transferred to the mercury. यानी कि जब हम उस थर्मोमीटर को मुंह में लगाते जीभ के नीचे, तो हमारे बॉडी का जो हीट है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है मरकरी को in the thermometer bulb, and the heat makes the liquid of mercury of the thermometer bulb to expand. यानी कि हमारे हीट से क्या होता है, मरकरी एक्सपैंड होने लगती है, वो अपनी वॉल्यूम बढ़ाने लगती है, and due to which mercury thread is pushed to a higher level in the thermometer. और इस प्रकार से वो गर्म होकर एक्सपैंड होकर वो अपना लेवल हाई कर लेती है यानी बढ़ने लगती है. And higher the fever of patient, greater will be his body heat. Hence, higher will be the level of mercury और higher will be the temperature shown by the thermometer. यानी कि जितना ज़्यादा हीट बॉडी में जितना ज़्यादा हीट होगा उतने ही तेज़ी से मरकरी का जो लेवल है वो हाई होगा. और इससे हम ये बता सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा बुखार है. In that case, a clinical thermometer cannot be used to measure the high temperature because it has been designed to measure only a human body temperature. यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं नाप सकते बिकॉज इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन करा हुआ है. यानी कि वो एक शॉर्ट टेम्परेचर ही नाप सकती है जो कि ह्यूमन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर होती है. वी शुड नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क बाय यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर. कभी भी हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल दूध की हॉटनेस नापने के लिए या चाय की हॉटनेस नापने के लिए नहीं करना चाहिए बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क इज वेरी हाई ड्यू टू विच इट विल कॉज अ लार्ज एक्सपेंशन ऑफ मरकरी. यानी कि जो गर्म दूध होता है वो काफी ज्यादा हॉट होता है. So children, we have to not we do not have to do such things, and since there is no extra space in the glass tube, क्योंकि अगर हम गर्म दूध में थर्मोमीटर डालेंगे तो मरकरी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड होगी और उतनी जगह थर्मोमीटर में नहीं होती है. टू अकोमोडेट लार्ज एक्सपेंशन ऑफ मरकरी द थर्मोमीटर ट्यूब विल ब्रेक. और वो मरकरी अपने आप को एक्सपैंड जब करेगी और थर्मोमीटर जो है काफी छोटा होता है और जब वो एक्सपैंड करेगी तो इट कैन ऑल्सो ब्रेक और ये इससे हमें क्षति भी हो सकती है. वी शुड नॉट ऑल्सो अवॉइड द कीपिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन हॉट सनशाइन नियर अदर हॉट ऑब्जेक्ट्स. और कभी भी हमें इसे गर्म चीजों के पास नहीं रखना चाहिए. सो चिल्ड्रन, देन next topic is comparison between clinical thermometer एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. जैसा कि मैंने बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया था. सेम थिंग इज दैट लेट अस सी ए सिमिलैरिटी बिटवीन. वहां पे हमने डिफरेंस बताया था और यहाँ पे हम कुछ सिमिलैरिटीज भी जानेंगे और कुछ डिफरेंस भी जानेंगे. ए सिमिलैरिटी बिटवीन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज द बोथ आर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर. यानी कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही ग्लास थर्मोमीटर के बने होते हैं. एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर एज फॉलोज. द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव अ वेरी शॉर्ट टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इसका जो रेंज है काफी शॉर्ट होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अपेक्षा बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज अ रेंज of -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. The next difference is the clinical thermometer has a kink or a construction in its tube to prevent the backflow of mercury. यानी कि उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसके कारण मरकरी जो है दोबारा से बैक की तरफ नहीं फ्लो करे और उसका जो रीडिंग है वो वैसे ही रिमेन रहे. यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को टिल्ट भी कर देते हैं देन ऑल्सो वी आर एबल टू रीड द करेक्ट रीडिंग ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर. but in but in laboratory thermometer there is no king, so we have to uh, we have to take a precaution when we are reading the scale
ऑन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिसके कारण हमें थर्मोमीटर को वर्टिकली स्ट्रेट रखना होता है और जब तक कि उसकी रीडिंग ना आ जाए. The next point is the clinical thermometer measure the temperature more accurately up to 0.1 degree Celsius than a laboratory thermometer which is usually measure up to 1 degree Celsius. यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में 0.1 डिग्री सेल्सियस भी बिल्कुल करेक्ट हम उसे रीड कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम 1 डिग्री सेल्सियस को ही करेक्ट हम नाप सकते हैं. यानी कहने का है कि बहुत ही छोटा जो स्केल है वो भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल करेक्ट नाप सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू इन लेबोरेटरी thermometer. So children, in the previous video I told about two more thermometer, that was digital thermometer and maximum and minimum thermometer. So let us see what is digital thermometer. Most of the common thermometers are mercury thermometer which is use a liquid metal called mercury. यानी कि अधिक से जो भी थर्मोमीटर होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का लिक्विड मेटल होता है, दैट इज मरकरी. फॉर देयर वर्किंग, मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है, एंड हिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स. यानी कि थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड मेटल होता है दैट इज मरकरी, जो कि बहुत ही टॉक्सिक, इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है. तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर बाय द वे थर्मोमीटर ब्रेक कर जाता है, तो इसके जो मरकरी को डिस्पोज करना काफी हार्मफुल हो सकता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर. सो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कंसर्न होने की ज़रूरत है कि जब भी हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, these days digital thermometer are available which do not use mercury. इसीलिए आजकल साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है. आजकल डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ होता है जिसमें कोई मरकरी के गिरने का या फिर थर्मोमीटर के फूटने का कोई भी रिस्क नहीं होता है. सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये काफ़ी मतलब कि इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, हमें कोई भी हार्म नहीं होगा. द नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम thermometer. The maximum temperature of the day usually reaches in the afternoon, whereas the minimum temperature usually occurs in the early morning. यानी कि पूरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में बिल्कुल घटा रहता है, बिल्कुल कम रहता है, मिनिमम रहता है. द वेदर फोरकास्टिंग एंड अदर meteorological work, it is necessary to know the highest and the lowest temperature reached in the surroundings during a whole day. यानी कि बहुत सारे ऐसे वेदर फोरकास्ट के लिए या फिर मेट्रोलॉजिकल वर्क के लिए इन सब मापक यानी कि पूरे दिन का हमें हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जानना जरूरी होता है. इन दैट केस देयर इज अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. यानी कि उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ थर्मोमीटर है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, जो कि पूरे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रीड कर सकता है. एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्ट इन द वेदर रिपोर्ट इन टीवी. यानी कि आप टीवी में देख सकते हो कि आपको टेम्परेचर बताए जाते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है या फिर मुंबई का इतना है, दिल्ली का इतना है. तो ये जो होता है ये कहाँ से मापा जाता है? इट इज यूज्ड बाय अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर की सहायता से इसके टेम्परेचर को नापा जाता है और देन टीवी पे आपको ये न्यूज में बताया जाता है कि इस प्लेस का जो टेम्परेचर है इतना था, and newspaper are measured by the maximum and minimum thermometer. So children, in the next video, ये वीडियो काफी लंबा हो गया. In the next video I will teach you about transfer of heat. Thank you.